Hi friends, once again I welcome you all at Crack Grade B. In our previous part we have covered some government scheme from Ministry of Finance. In this second part we will cover rest of the scheme from this ministry. We are focusing in this video lecture on revision of the scheme. I mean to say what we are studying in this video, what we are going to study in this video, we will focus mainly upon the revision part of the government scheme because your exam is going to be happen in this month. So let's start with this first scheme, that is the PMVY, Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana. Friends, this scheme, that is Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana, is a pension scheme. It is a pension scheme. And it is launched for senior citizen age 60 years and above. It was launched in 21st of July 2017. Minimum entry age for this scheme is 60 years and it should be completed because this scheme is launched for to give pension to the senior citizen, and senior citizen start from this 60 years of age. Maximum entry age, there is no limit. The terms of the policy is 10 years. That is, this scheme can be run by a senior citizen up to 10 years. There are various conditions under this policy term we will discuss in our subsequent slides. First of all, the minimum pension is restricted to 1,000 per month. You can the person can have 3,000 per quarter, 6,000 per half year, or 12,000 per year. Maximum pension can be of 10,000 per month, 30,000 per quarter, 60,000 per half year, and 1,20,000 per year. So these are the limits of the pension and which is provided to senior citizen under this Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana. Benefits. First, pension benefit. On survival of the pensioner during the policy terms of 10 years, pension in arrears at the end of each period, whatever mode he is selected. Either he has selected per month, per quarter, per half year, or per year. On the death of the beneficiaries, on the death of the pensioner during the policy term of 10 years, the purchase price shall be refunded to the beneficiaries. And on the maturity, if he survived up to the maturity of this scheme, then on survival of the pensioner to the end of the policy, purchase price along with the pension installment shall be payable. It is regulated or implemented by the LIC. Most important, remember this. And under this, a person or a pensioner can take a loan, and the loan can be taken after completing 3 policy years, and the maximum loan that can be granted 75% of the purchase price surrender value. Like each and every other scheme, there is a provision of premature exit during the policy term under exceptional circumstances, like pensioner require money for treatment of any critical terminal illness, for self or spouse, and the surrender value payable in such case shall be 98% of the purchase price. Exclusion. In the case of suicide, there shall be no exclusion on the count of suicide and full purchase price shall be payable. So this is a different type of scheme. In this scheme, they are providing full purchase price in the case of the suicide. Maximum limit under this is 50 lakhs per senior citizen. Friends, these are the features. Now, recently government has extended this scheme. First of all, this scheme was launched for 31st March 2020, but now government has extended this scheme up to 31st March 2023. There are some key changes. Under this,
they are providing initially an assured rate of return of 7.40 per annum for the year 2021 per annum, thereafter the reset every year. It means 2020-21 they are giving fixed 7.40% per annum of rate of interest. Now, the annual reset of assured rate of interest with effect from 1st of financial year in line with the revised rate of return senior citizen saving scheme up to selling of 7.75%. So rate of interest is linked with the senior citizen saving scheme and with the capping of 7.75% with the fresh appraisal of the scheme on breach of this threshold at any point. Now, approval for expenditure to be incurred on account of the difference between the market rate of return generated by LIC and the guaranteed rate of return under the scheme. Capping for management expenses under this scheme was given, that is 0.5% per annum of funds of the scheme for first year of the scheme and in respect of new policy issued, and thereafter this expense will be restricted up to 0.3% per annum for second year onwards up to rest of the period, that is 9 years. And in this case it is a very important line that the setting of interest rate, this authority is delegated to the finance minister. These are some revised investment under this. Under this, the minimum investment has been also revised from this 1,56,658 for pension of rupees 12,000 per month and 1,62,162 for getting a minimum pension of 1,000 per month. So these are the revised rate, and this scheme has already, I have told you, that extended up to 2023. Now our next scheme, that is Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Friends, it was a very big scheme and its main objective was to, actually it is not a scheme, it's a national mission, और इसके अंदर government is trying to focus on the financial inclusion to ensure access to financial services, namely banking, saving, deposit, account, remittance, credit insurance, pension in affordable manner. सिंपल इसका जो मेन टारगेट था, लोगों के बैंक अकाउंट को खुलना, उनको फाइनेंशियली इंक्लूड करना. अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम लॉन्च करती है तो वो उस पर्सन तक कैसे पहुंचेगी अगर वो उस फाइनेंशियल सिस्टम से लिंक नहीं है. तो इसका मेन मोटिव था फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय एंश्योरिंग दैट जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं वो उस पर्सन को मिले. देयर आर सम बेसिक टेनिट्स ऑफ दिस स्कीम. First is banking to the unbanked. In this case, saving bank account with minimal paperwork, relaxed KYC, e-KYC, accounting opening, camp mode, zero balance. तो ये उनका पर्पस था कि बैंक्स किंग जो अनबैंकिंग पर्सन है उनको उनका अकाउंट खुलवाना. देन सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, issuance of indigenous debit card for cash withdrawal and payments at merchant location with free accident insurance. आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने जब स्कीम खोली थी तो वो शुरुआत में कुछ मिनिमम प्रीमियम के साथ एक इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड करा रहे थे लोग, एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम. तो ये क्या कर रहे हैं कि सिक्योर कर रहे हैं अनसिक्योर्ड पर्सन को. दूसरी बात, फंडिंग द अनफंड. सो दीज आर सम बेसिक टीनेट. इन दिस केस अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट लाइक माइक्रो इंश्योरेंस, ओवरड्राफ्ट, कंजप्शन, माइक्रो पेंशन एंड माइक्रो क्रेडिट आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग. देयर आर 6 पिलर्स ऑन विच दिस स्कीम इज बेस्ड. The first is universal access to banking services, basic saving bank account with overdraft facility of 10,000 to every eligible adult, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, लोगों को अवेयर भी करना है कि भाई एटीएम कैसे यूज होता है, मर्चेंट के पास, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन्स के पास जाके आप कैसे पेमेंट कर सकते हो, पेंशन कैसे मिलती है, इंश्योरेंस आप कैसे ले सकते हो, फोन बैंकिंग के थ्रू आप कैसे मैसेज दे सकते हो, पैसे ट्रांसफर कर सकते हो. इसके लिए उन्होंने क्या किया, द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड टू प्रोवाइड बैंक सम गारंटी अगेंस्ट डिफॉल्ट. अगर कोई डिफॉल्ट होता है इस तरह के अकाउंट खोलने के बाद तो गवर्नमेंट उसको बैकिंग दे रही है, बैक दे रही है बाई प्रोवाइडिंग दिस क्रेडिट गारंटी फंड.
then they are providing accident cover of 1 lakh and life cover of 30,000 on account opened between 15th August to 31st January 2015. पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जो पहले हम लोगों ने ये सारी स्कीम्स डिस्कस की थी और हमारे प्रीवियस वीडियो में, अब आ जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस सारी स्कीम्स को उन्होंने इसको कैसे लिंक किया है अपनी प्रीवियस स्कीम के साथ। ठीक, अब देखते हैं कि इसको लॉन्च कब किया गया था। इसको लॉन्च किया था 20th अगस्त ऑफ 2014 एंड इट वाज अनाउंस्ड ऑन 15th अगस्त ऑफ 2014। फ्रेंड्स, आप ये लॉन्चिंग डेट आपसे डायरेक्ट तो शायद ना पूछे, पूछ भी सकता है, पर आपको इसका सीक्वेंस जरूर याद रखना होगा कि 2014 में कब हुई है, 15 में कौन सी हुई है। तो कभी कभी ये पूछ देता है कि भाई सबसे पुरानी स्कीम कौन सी है, या इनको मैच करो आप। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब इसके बाद क्या है कि इस अकाउंट को खोलने के लिए उन्होंने मिनिमम एज दिया है 10 ईयर्स। अब इसको खुलवाने के लिए कुछ बैंक मित्रास की जरूरत पड़ती है। तो वो बैंक मित्रा कौन बन सकता है, वो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय, रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक्स सर्विसमैन, इंडिविजुअल ओनर्स ऑफ किराना, मेडिकल, फेयर प्राइस शॉप। तो कोई भी इंसान इस बैंक अकाउंट को खुलवाने के लिए उनकी हेल्प कर सकता है। इंडिविजुअल पब्लिक कॉल ऑफिसेस, एजेंट ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंपनीज नॉट for profit companies registered under the Indian Companies Act and non-banking financial companies। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, ensure access of financial product and services at an affordable cost with the use of technology to the needy peoples। बेनिफिट्स है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, एक्सीडेंट कवर, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, लाइफ कवर आपका 30,000 का दे रहे हैं, इजी ट्रांसफर ऑफ मनी, बेनिफिशियरीज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, भाई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आप दे सकते हैं अगर आपका अकाउंट खोला हुआ है तो। सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट फॉर 6 मंथ एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो याद रखना कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो 6 मंथ के बाद होगी, आपका अकाउंट खोलने के तुरंत बाद वो चालू नहीं होगी। जो 10,000 रुपये आप निकाल सकते हैं अगर आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस है तो भी। पेंशन और इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो भी आपके डायरेक्ट अकाउंट से हो सकते हैं। जो पुरानी स्कीम्स है PMJDY, उसके अगर कोई क्लेम्स हैं तो भी आप वहां जाके इस अकाउंट में मंगवा सकते हैं। रुपे कार्ड होल्डर है परफॉर्म मिनिमम 1 सक्सेसफुल और नॉन फाइनेंशियल कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन एट द बैंक ब्रांच, बैंक मित्रा, ATM, पॉइंट ऑफ सेल, ई-कॉम, ETC, चैनल बोथ इंटर एंड इंटर बैंक ओनर्स बैंक। तो इसमें वो ये कह रहा है कि अगर आप इस तरह के रुपे कार्ड से कोई पेमेंट करते हैं तो उस केस में आपको कुछ बेनिफिट दिए जाएंगे, जैसे कि रुपे इंश्योरेंस प्रोग्राम, और इसके बाद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आप ले सकते हो विद इन आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ। अब इसमें एग्जिट क्या है भाई? एग्जिट कैसे हो सकता है? द पर्सन विल एग्जिट द स्कीम ऑन रीचिंग एज ऑफ 60 ऑन द डे द पर्सन टर्न 60, वो ऑटोमेटिकली इस स्कीम से अपने आप एग्जिट हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए इसके लिए? आधार नंबर, आधार कार्ड हो, अगर आधार नहीं है तो इसके अलावा कोई भी ये OBD ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट है लाइक वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और नरेगा कार्ड। तो याद रखना कि ये सारे कार्ड जो हैं यही उसके अंदर एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स हैं। इस पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मालूम पड़ा कि MG नरेगा की आप सोचते रह जाओ कि नहीं MG नरेगा तो कहीं नहीं लिखा था। तो याद रखना ये सारे के सारी चीजें हैं, ये उसमें एज ए ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में दिखाए जा सकते हैं। इसके बाद proof of identity and address if address is mentioned. If officially valid documents are not available, an individual is categorized as a low risk by the banks. One of the following document is required. कैसे? Identity card with applicant photograph issued by the central और state government भी जा सकता है, स्टेटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अगर है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से है, तो ये आई कार्ड भी चल सकता है अगर ये आपके पास इस तरह के डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो। और इसके अलावा लेटर इश्यूड बाय कोई भी गजेटेड ऑफिसर है, जो राजपत्रित अधिकारी जिसको हम कहते हैं, उसके साथ अगर उसने आपको आपके फोटो को अटैच कर दिया है और अगर एड्रेस, तो वो आपके एड्रेस प्रूफ में काम हो जाएगा। अगर इन एब्सेंस ऑफ KYC स्मॉल अकाउंट कैन बी ओपन विद फॉलोइंग बेनिफिट। अगर KYC नहीं हो पा रही है तो एग्रीगेट ऑफ ऑल द क्रेडिट इन स्मॉल अकाउंट कैनॉट बी एक्सीड 1 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक छोटा अकाउंट भी खोला जा सकता है इसके अंदर। Aggregate of all withdrawal and transfer in a small account cannot be exceed 10,000 in a month. And balance in the small account at any point in time cannot be exceed 15,000। ठीक है। अब इसके कुछ इम्प्लीमेंटेशन फेज है। देखो ये लॉन्च हुई थी कब? ये लॉन्च हुई थी
याद रखना पड़ता है दोस्तों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हुई थी जुलाई 2017 में। लेकिन भाई इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था? इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 15 अगस्त 2014 को। ठीक है, तो इसका एक फेज था 15 अगस्त 2014 से लेके 14 अगस्त 2015 तक। सो यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज इस टाइम में, इस फेज में दी गई थी। दे आर प्रोवाइडिंग बेसिक बैंकिंग अकाउंट्स फॉर सेविंग्स and remittance and रुपए डेबिट कार्ड with inbuilt accident insurance cover of 1 lakh, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम वी कैन से दैट। और फेज सेकंड में ये था आपका 2015 से लेकर 2018 तक। इन्होंने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को दिया 5000 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ ऑफ सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ सेविंग क्रेडिट हिस्ट्री। दे हैव क्रिएटेड अ क्रेडिट गारंटी फंड। बैंक को डर लग रहा था कि भाई डिफॉल्ट हो जाएगा तो कौन बियर करेगा, तो उन्होंने इस तरह का एक गारंटी फंड जनरेट किया, लेकिन ये फेज सेकंड में किया था। उसके बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर पेंशन स्कीम लाइक स्वावलंबन और ये सारी स्कीम्स को इन्होंने इसके साथ मतलब इंटरलिंक किया, नॉट मर्ज, इंटरलिंक किया। तो 2018 के बाद द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू कंटिन्यू नेशनल वेंशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन विद फोकस ऑन ओपनिंग अकाउंट फॉर एवरी हाउस होल्ड टू एवरी एडल्ट। याद रखना, एवरी हाउस होल्ड टू एवरी एडल्ट। सो प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना को फिर कुछ मॉडिफिकेशन के साथ इन्होंने लॉन्च किया। क्या किया कि 2018 के बाद यानी कि 14 अगस्त इन्होंने इसको नेशनल, ये वाला जो मिशन था जिसको हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना बोला, इट्स अ मिशन, इन्होंने इसको कंटिन्यू किया, इंक्रीज कर दिया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को 5000 से 10,000। देयर विल नॉट बी एनी कंडीशन अटैच टू ओडी, कोई कंडीशन नहीं छोटी, लेकिन 2000 रुपये तक, 2000 रुपये तक आप निकाल सकते हो, लेकिन उसके बाद कुछ कंडीशन है जिनको फुलफिल करना होगा। ओडी फैसिलिटी के लिए उन्होंने एज को 18 to 16 ईयर से लेके 18 to 65 ईयर्स कर दिया। कवरेज को एक्सपेंड कर दिया, मींस एवरी हाउस होल्ड टू एवरी एडल्ट। मैंने भी आपको बताया कि पहले हाउस होल्ड के पास एक अकाउंट होना चाहिए था पूरे घर में, एक परिवार के पास, पर उन्होंने कहा कि अब हर आदमी के, हर एडल्ट के पास होगा। एंड एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस कवर ऑफ न्यू रुपे कार्ड होल्डर इन रेंज फ्रॉम 1 lakh to 2 lakh and 2 new PMJDY accounts opened after 2018. Now, Prime Minister Jan Dhan Yojana accounts are eligible for direct benefit of transfer. जितनी भी स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस मुद्रा, जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं वो, तो ये सारे के सारे इन्होंने इसको इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ये जो PMJDY के जो लोग हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं। तो मैंने सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। अब देखो जल्दी से हम स्कीम शुरू करते हैं। यह है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी लिमिटेड बैंक। देखो दोस्तों, इसको हम बोलते हैं मुद्रा। इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, ये है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, right, is a financial institution set up under the government of India under Pradhan Mantri Mudra Yojana for development and refinancing of micro unit enterprises. इसको अनाउंस किया था यूनियन बजट 2015-16 में। और मुद्रा है क्या? मुद्रा इज अ रजिस्टर्ड कंपनी एंड इट वाज रजिस्टर्ड इन March 2015 under the Companies Act 2030 as a non-banking finance institution with RBI as on April 2015. So आपके पास क्वेश्चन आता है भाई क्या है ये मुद्रा, क्या है मुद्रा, कोई बैंक है या क्या है? तो सीधे बोलोगे नहीं भैया ये कंपनी है रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2013। उसके बाद ये जो है इनिशियली इसको जो है फॉर्म किया था, वो फॉर्म किया था सिडबी ने, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सिडबी, विद 100% कैपिटल बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय इट। बट इसके बाद क्या किया इन्होंने, यानी कि प्रेजेंटली, ये तो इनिशियली था, ये प्रेजेंटली है, अंडर दिस द ऑथराइज कैपिटल ऑफ मुद्रा दैट इज 1000 करोड़ एंड पेड अप कैपिटल इज 75 करोड़ इज फुली सब्सक्राइब बाय द सिडबी। 1000 करोड़ में जो पेड अप कैपिटल है 750 करोड़ की, इट इज सब्सक्राइब बाय द सिडबी। लॉन्च ऑन 8 अप्रैल 2015। अच्छा, इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है ये याद रखना। Any Indian citizen who has a business plan for non-farm income generation activities such as manufacturing, process, trading। non-farm क्यों बोला इसने? क्योंकि फार्मिंग और एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारी स्कीम ऑलरेडी चल रही है। इसका जो मेन फोकस था तो वो था मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसिंग सेक्टर whose credit need is less than
1 million can approach either bank, microfinance institution or non-banking financial companies for availing मुद्रा लोन। नॉन फार्म एक्टिविटीज कहाँ जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, किसी भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास, बैंक के पास और नॉन बैंकिंग के पास। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, वो पूछेगा भाई कि जो मुद्रा लोन देने के लिए कौन कौन एलिजिबल है, 4-5 ऑप्शन दे देगा। आपको लगेगा कि भाई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, और दिमाग नहीं चलेगा कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को मैं कैसे क्लिक करूं, ये तो नहीं था। लेकिन याद रखना, बैंक, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सारे के सारे एलिजिबल हैं फॉर प्रोवाइडिंग मुद्रा लोन अंडर दिस प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना। ठीक है। द यूजुअल टर्म्स एंड कंडीशन फॉर लैंडिंग एजेंसी मे हैव टू बी फॉलोड बाय अवेलिंग लोन्स अंडर प्रधानमंत्री योजना। नाउ एम मैंने आपको बता दिया कि जो ऑर्गेनाइजेशन या छोटी माइक्रो एंटरप्राइजेस है जिनको 10 लाख तक की जरूरत है और वो क्या है, इंडियन सिटीजन है, वो इसके अंदर एलिजिबल है, वो लोन ले सकते हैं। अच्छा, इसमें इन्होंने एक काम और किया है कि रिसेंटली दे अलाउड एलाइड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी को भी इन्होंने इस मुद्रा के अंदर लोन देना शुरू कर दिया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड फंडिंग टू नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर थ्रू वेरियस लास्ट माइल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक, नॉन बैंकिंग। देखो बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, उनको लोन कहीं से मिल जाता है, वो कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे हैं जिनको 10 लाख से कम की रिक्वायरमेंट है, वो कैसे फुलफिल होगी। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, उन सारे उनको देखना जो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, द इंटरेस्ट रेट आर डीरेगुलेटेड एंड द बैंक हैव बीन एडवाइज टू चार्ज रीजनेबल इंटरेस्ट रेट विद इन द ओवरऑल गाइडलाइंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एजेंसीज मुद्रा लोन आर अवेलेबल थ्रू पब्लिक सेक्टर बैंक, PSUs बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई भी कोलेट्रल रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। इसकी मॉनिटरिंग कौन करता है, इट्स मॉनिटरिंग इज डन एट स्टेट लेवल थ्रू स्टेट लेवल बैंकर कमेटी फोरम एंड एट नेशनल लेवल डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो स्टेट लेवल पर इसकी मॉनिटरिंग करता है स्टेट लेवल बैंकर कमेटी और बड़े लेवल पर यानी कि नेशनल लेवल पर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट नीडेड, एप्लीकेशन फॉर्म, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, बैंक ऑफ स्टेटमेंट ऑफ डिफाइंड पीरियड, स्टैट्यूटरी रिटर्न एंड अदर एज में बी रिक्वायर्ड। अब इसमें 3 तरह के लोन है भाई, कैसे 3 कैटेगरीज ऑफ लोन आर। द फर्स्ट दे हैव डिफाइंड इज शिशु लोन अप टू 50,000, किशोर 50 to 5 लाख एंड तरुण। तो ये बहुत हिंदी के वर्ड हैं जो जैसे जैसे आप इधर बढ़ेंगे तो ये इनकी एक बच्चा, फिर एक छोटा बच्चा, फिर एक बड़ा बच्चा, इस तरह से आप समझ सकते हैं उसको। तो 50,000 एंड 5 लाख अप टू 10 लाख दे आर तरुण। इसके लिए इन्होंने एक क्रेडिट गारंटी फंड ऑफ माइक्रो यूनिट्स को वो किया है, एस्टेब्लिश किया है। उसमें क्या है, अ सेपरेट क्रेडिट गारंटी फंड वाज क्रिएटेड फॉर मुद्रा लोन। इसमें इन्होंने इनिशियल कॉर्पस रखा है 3,000 करोड़। एंड दिस नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी मैनेजिंग वेरियस क्रेडिट गारंटी फंड्स वाज अपॉइंटेड एज अ इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। याद रखना, इंप्लीमेंटेड एजेंसी है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। अब इसके अंदर एक्टिविटीज कौन सी कवर्ड होती हैं, देखो इसके अंदर क्या है, एग्रीकल्चर में स्टार्ट, एस्टेब्लिश, एक्सपेंड एग्रीकल्चर एडलाइड बिजनेस सच एज एन एपेरी, पोल्ट्री फार्म, पिसीकल्चर बिजनेस, डेयरी फार्म, लाइव स्टॉक फार्म। तो एलाइड बिजनेस की बात कर रहा है, डायरेक्ट फूड क्रॉप्स की बात नहीं कर रहा है इसके अंदर, तो इस चीज को याद रखना। फूड में परचेज ऑफ मशीनरी, सेटअप बिजनेस इन मेकिंग पापड़, जैम, जलीब। सर्विस में सेटअप सैलून, बुटीक, केमिस्ट शॉप, इस तरह की। टेक्सटाइल में आर्टिसन who wants to start, establish or expand business in chicken work, zari work, embroidery। और ट्रांसपोर्ट में परचेज ऑफ व्हीकल टू कैरी पैसेंजर गुड्स सच एज ई रिक्शा, स्मॉल। तो ये सारे की सारी चीजों में आपको लोन मिल जाएगा। इसके कुछ एडिशनल फीचर हैं। इसमें क्या है, उदय मित्रा पोर्टल आपने सुना होगा, इस पोर्टल के थ्रू कोई भी आदमी इस मुद्रा लोन को ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकता है और अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को भी चेक कर सकता है। इसमें मुद्रा कार्ड दिया है। द पर्पज ऑफ वर्किंग कैपिटल लिमिट, मुद्रा हैज लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड मुद्रा कार्ड विच इज डेबिट कार्ड इशूड टू ऑन रुपे प्लेटफॉर्म एंड प्रोवाइड हैसल फ्री क्रेडिट इन फ्लेक्सिबल मैनर। मुद्रा मित्रा ये एक मोबाइल ऐप है जिस पर आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं फॉर दिस मुद्रा लोन। एंड इन लास्ट they are providing interest submission scheme for Mudra Shishu loan, interest submission of 2% for a period of 12 months। तो फ्रेंड्स आज इतना ही रखते हैं, अगली बार में हम सारी स्कीम्स को कवर कर लेंगे और टिल देन
ये हमारे स्टार परफॉर्मर हैं जो पिछले कुछ सालों में आरबीआई ग्रेड पीवी के एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग जो है सीबी ग्रेड का कोर्स जो है 2499 रुपीज़ पर प्रोवाइड करा रहे हैं, और आप हमारा कॉम्बो कोर्स भी ले सकते हैं, दैट इज़ एट ₹3499 आरबीआई ग्रेड बी एंड सीबी ग्रेड ए। एंड वी आर कवरिंग ऑल दिस टॉपिक in this RBI grade B 2022, and we are charging for this 2499. For more update you can visit our website, that is www.crackgradeb.com. So till then, thank you and happy learning. पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।